नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज हम अपनी खबरों की शुरुआत करेंगे बीटीसी चुनाव के लिए असम भाजपा द्वारा जारी की गई मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की खबर से। उसके बाद हम जानेंगे कि नई कृषि विधेयक को लेकर किसान क्यों गुस्से में हैं और वह दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। साथ ही हम आज ये भी देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए किसानों के लिए क्या संदेश दिए हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि स्वनिर्भर नारी एवं आत्मनिर्भर असम के तहत आज सोनाई में कौन से लाभार्थियों को फॉर्म वितरण किया गया। इन सब के अतिरिक्त और कई अहम खबरें आज हम जानेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। आइए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी खबर बीटीसी चुनाव के मद्देनजर असम भाजपा द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र की खबर से। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का कहना था कि केंद्र सरकार की पहले का घोषणा पत्र तथा असम सरकार द्वारा किया गया घोषणा पत्र को सम्मिलित करते हुए बीटीसी चुनाव के लिए और कई नई घोषणा किया गया है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए यही जानकारी दी। आइए सुनते हैं। गाँव कर्तन और अंतर्भुक्तिकरण এই দুইটা বিটিআর চুক্তিৰ দফাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰূপায়ণ কৰিব। আপোনালোকে জানে যে বিটিচিৰ আসনৰ সংখ্যা 40ৰ পৰা 60 হ'ব। যেতিয়া 40ৰ পৰা 60 হ'ব, বহুত জনগোষ্ঠীৰ এটা অভিযোগ আছে যে বিটিচিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব নাই। তেওঁলোকে ভাবে যে বিটিচিৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি বহুত দূৰত আছো। এই যে 20টা অতিৰিক্ত সিট হ'ব, এই 20টা অতিৰিক্ত সিটত আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাকৈ আমি ডিলিমিটেশন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি বিটিচিৰ সিটবিলাক আমি এনেকে নতুনকৈ সজাম যে ইয়াত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ সুবিধা পায়। আপোনালোকে জানে যে বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি কিছুদিন আগতে বড়ো ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিটিচিত অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ সম প্ৰচলন আৰু দুইটা ভাষাৰ লগত জড়িত বৌদ্ধিক পৰিমণ্ডলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে চেষ্টা কৰিব। তাৰ লগে লগে সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত স্বীকৃত ভাষা সাঁওতালি বিটিচি নিযুক্তিৰ যে CSB প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আইনসন্মত নহয়, যেটো তেওঁলোকে সেন্ট্ৰেল সিলেকশন বোৰ্ড বুলি কয়। এইটো এটা সাৰ্ভিস ৰুলৰ বিপৰীতে গঢ়ি উঠা অসাংবিধানিক পৰম্পৰা। এই CSB ভংগ কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰতিটো বিভাগে নিজ নিজ জিলাত নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা পাতি বিভাগীয়ভাৱে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ওদালগুৰিত যদি এটা পদ খালী হৈছে তাক ওদালগুৰিতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কোকৰাঝাৰত যদি এটা পদ খালী হৈছে তাক কোকৰাঝাৰতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বাস্কা চিৰাঙত যদি কিবা এটা পদ খালী হৈছে তাতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলে নিযুক্তি কৰিব। ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হ'ব দিয়া নহ'ব। ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত গৈ বিভাগীয় বিষয়াসকলে সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিটিচিৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰা হ'ব। তাৰ লগে লগে আমাৰ বিটিচিৰ প্ৰত্যেকটো চাকৰিত আমি 10% সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিম। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम के मद्देनजर आज सोनाई में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर की उपस्थिति में SHG ग्रुप के लाभार्थी महिलाओं को फॉर्म वितरण किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर के अतिरिक्त आज उपस्थित थे सोनाई BDO बासिर अहमद, JE बहारुद्दीन, विश्वजीत चक्रवर्ती, वेटरनरी के चिकित्सक सुजय चक्रवर्ती, SLRM के सोनाई BPM टुम्पानाथ प्रमुख। নিজে যাতে স্বনির্ভরশীল হতে পারে এর জন্য আজকে এই যেটা স্বনির্ভর নারী আত্মনির্ভর আসাম এই যোজনার ভিতরে
বেশ কিছু লাইন ডিপার্টমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেরকম ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট, বন বিভাগ, এরপরে সেরিকালচার বিভাগ, হর্টিকালচার বিভাগ, বেশ কিছু বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে ওই যোজনাটা কাজ শুরু করা হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকটা এসএনজি গ্রুপে আপনারা রিভলভিং ফান্ড পান, আর এই রিভলভিং ফান্ড যেটা পান এটা দিয়ে আপনারা আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব নয়। এটা সরকারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরা চিন্তা করতেছে যে এই যে আমাদের মহিলাদেরকে এসএনজি গ্রুপদেরকে আমরা 25,000, 50,000, 1 লাখ টাকা দিব, এই টাকা দিয়ে তারা সত্যিকারের স্বনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব হবে। এর জন্য সরকারের লাইন ডিপার্টমেন্ট গুলাকে ওইটার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, যাতে আমাদের সম্মানিত মহিলারা যারা নিজেকে আত্মনির্ভরশীল স্বনির্ভরশীল করতে চায় তাদের। उधारबंद सहकारी समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। चुनाव में विजयी हुए लियाकत अली लश्कर, मनोज कुमार चंद, नीलेंदु दे, अब्दुल हालिम। दुर्बल श्रेणी में 431 वोट के साथ विजयी हुए आमरुल हक लश्कर, तोही तमाल दे एवं आमिर उद्दीन बड़भुइया को बराबर वोट मिलने पर दोनों में लॉटरी की गई, जिसमें आमिर उद्दीन ने बाजी मारी। गन्ना के वक्त मौजूद थे सर्कल ऑफिसर जयंत चक्रवर्ती, उधारबंद पुलिस अधिकारी आशीष सूत्रधर। उपस्थित आज के सभार मैं मुरब्बीजन, আমার মিডিয়া ভাইরা, উপস্থিত আমার বোর্ড অফ ডিরেক্টর ওমেন এবং এসি কাস্টের বীরেন ভাই সহ আমরা উপস্থিত আছি 10 জনের মতো। আজকে এই সভার কারণটা হলো আমরা যে ভোট পেয়েছি সবার কাছে আমরা তরফ থেকে সালাম এবং নমস্কার জানাই এলাকার মুরব্বীগণকে এবং ছোট ভাই বোনদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আমাদেরকে সবাই ভোট দিয়েছে, আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব। এরপর আজকের সবাই আমরা চেয়ারম্যান হিসাবে যখন আমার বোর্ডের মেম্বার ভাইরা যখন আমাকে সিলেকশন করেছে, এও আমি তো ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আগামী 2-3 দিন পরে আমরা অফিসিয়াল ম্যান্ডেট যেটা কাজ হবে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কে চেয়ারম্যান হবে না হবে। আর ওরা যখন বলেছে আমি চেয়ারম্যান হব, তাহলে নিশ্চয়ই বলা দিলে আমিও চেয়ারম্যান হব। ওনাদেরকে আমি আমার ধন্যবাদ। ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সম্বন্ধে আজকে এই মুহূর্তে বলবো না, আমরা সবাই মিলে যাকে দেওয়া যায় সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা একমত মত রেখে আমরা একজনকে দেবো। আপনার কি পরিকল্পনা রয়েছে? আমার পরিকল্পনা রয়েছে যে আগামী দিনে কোঅপারেটিভ সোসাইটির ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আমার ব্যবসা বাড়ানোর খুবই পরিকল্পনা এবং মানুষের যাতে খাদ্য সুরক্ষার কার্ডের চাউলটা যেমন সুন্দর মতো পৌঁছে, অথচ কার্ডে পপুলেশন কম আছে, এটা সামনে বাড়ানো যায়, এটাও আমি দেখবো। এই আমার পরিকল্পনা। বিগত নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আছে কি? বিগত নেতৃত্ব সম্পর্কে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন উনিও আমার ভাই, উনিও ভালো চালিয়ে গেছেন। আর ওনার সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই, যদিও উনি আমাকে খারাপ বলা বলেন না কেন, আমি ওনাকে খারাপ বলবো না কোনোদিন। धन्यवाद। बोरखोला में एक बाइक एवं एक ट्रिपर के आमने सामने हुई टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बोरखोला महासड़क में सिलचर से जा रही मोटर बाइक AS11R6048 एवं बोरखोला से आती हुई ट्रिपर MZ059967 के साथ आमने सामने की टक्कर से यह दुर्घटना घटी। सूचना मिलने पर बोरखोला पुलिस चौकी के ASI नीलय सिंह मौके पर उपस्थित होकर घायल युवकों को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भेजे। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम।
वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हिंदुत्ववादी युवा नेता चित्तरंजन बोरा को सिलचर इलोरा हेरिटेज में पूर्वोत्तर कलेक्टिव संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। इस अवसर पर पूर्वोत्तर कलेक्टिव का चेयरपर्सन स्वर्णाली चौधरी को महिला शक्ति संवर्धन फोरम काछाड़ जिला का संयोजक बनाया गया। আমাদের এখানে এসেছিলেন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট স্ট্রেংথেনিং ফোরাম অফ আসামের চেয়ারপারসন গীত কামরূপা। উনি এসে মাত্র দেখা করে গেলেন, তার মধ্যে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে 10 মিনিটের জন্য এসেছিলেন, এসে কথা বলে গেছেন। এবং আমি স্বর্ণালী চৌধুরী, আমাকে ওরা কাছাড়ে কনভেনার বানিয়েছেন, কারণ সমস্ত কিছু নিয়েই মেয়েদের এমন একটা জায়গায় আজকে আছে, এটা খুব দরকার ছিল আমাদের। তো সেইটা জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট স্ট্রেংথেনিং ফোরামকে। এবং আমি সবাইকে জানাচ্ছি, শিলচরবাসী সবাইকে জানাচ্ছি যে কারো কোনো সাহায্য, মেয়েদের কোনো সাহায্য, কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। কারণ এটা যে আমাদের সাথে কথা বলে একদম নর্মাল কথা বলবে, মেয়েটা চাকরিও করতো। কাজে এই যে জায়গাগুলো থেকে মেয়েটাকে আমরা রেস্কিউ করতে পারছি না। কালকে আমি একটু ওনার রাতে কথা বলবো বলে কিভাবে কি করা যায়, দরকারে ওনাকে নিয়ে ওই জায়গাটায় গিয়ে আমরা দেখব। এই জায়গাগুলোর জন্য এই ফোরামটার ভীষণ দরকার। আর তার জন্য ধন্যবাদ জানাই, আমি সবাইকে সহযোগিতা চাই এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের বরাকবাসী সবাইকে, যে আমরা আস্তে আস্তে এই জায়গাটা থেকে যদি একটা সত্যিই মেয়েদের যদি উপকৃত করতে পারি, তার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকবো। আপনারা আমাদের সবসময় কাছে পাবেন। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर पुलिस भी उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। रास्ते पे जगह जगह पर उनको रोका जा रहा है। इस मौके पर पुलिस द्वारा वाटर कैनन तथा आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। आइए पहले देख लेते हैं पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प का कुछ झलकियां। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए वीडियो संदेश जारी करते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं।
तो देखा आपने पुलिस और किसानों के बीच किस तरह की झड़प हो रही है। पुलिस उन्हें दिल्ली जाने से रोक रही है तो ही किसान दिल्ली जाने की जिद में अड़े हुए हैं। इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए देश के सभी किसानों को ये समझाने की कोशिश किए हैं कि लोगों द्वारा कुछ झूठे अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसका खुलासा कर रहे हैं कि क्या झूठ और क्या सच है देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया वीडियो संदेश। आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं बेच सकता है, इस तक के नियम बहुत सख्त थे। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। मैं आज बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो ये करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। मैं टैक्स का स्लैब आपको पढ़ के बताऊं तो राज्य सरकारों का मंडी टैक्स 2% से लेकर 8.5% तक है। पंजाब के हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, सर्वाधिक पंजाब में 8.5% है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मंडी के बाहर ट्रेड होगा तो ये 8.5% टैक्स नहीं लगेगा और ये 8.5% का फायदा सीधा सीधा किसान को आने वाला है। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा। लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है। किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है,
वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।